charges which were leveled against poetry, discourse of apology for poetry, summary, and different other aspects of Sydney's apology for poetry. You are welcome. If anybody has any question, any point to discuss, to share, most welcome. Should I move forward? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो कोई पॉइंट डिस्कस करने वाला नहीं है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्रिटिक है हम लोग उस पर बात करें. जी सर. Okay. Next we have romantic criticism, and before we start romantic criticism, we must be aware of what is romanticism actually, and especially romantic poetry is of a very great importance as far as English literature is concerned. It is the age of poetry actually. We have two different categories of romantic poets. We have William Blake, William Wordsworth, Coleridge, Keats, Shelley, William Lord Byron even, and some of the female voices in romantic poetry. Let me share my screen with you people. Is my screen visible to you people all? Yes sir. Okay. Yes, sir. Romanticism was a literary movement and a profound shift in sensibility, which took place in Britain and throughout Europe from 1770 to 1848. Almost, I mean, these years, some of the elements of the previous age and the forthcoming ages are very much there. So, French Revolution is one of the major event in the world history, is also covered up during this age, and it had a very strong relationship with the Romanticism also. And it was a kind of revolution in the social as well as the literary sensibility as well. And the Romantic age began in 1798 when William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge published lyrical ballads. It was a collaborative work of both the people. They have been poets as well as critics and the representative poets of their age of Romanticism. And it ended in 1832 when Walter Scott died. Later, in Victorian era, some of the writers and especially the poets shared some of the qualities of the Romantic poets, Romantic literature. Romantic period expressed an extreme assertion of the self and the value of individual experience.
There are certain elements which have been the focus of romanticism, and but a few have been more important as far as romanticism is concerned, and that is uh, imagination, use of imagination, individualism, and the importance of feelings and emotions. Then supernatural element has been there. Love for nature is very much there as far as the romantic poetry is concerned. So individual experiences and assertion of self, it has been very extremely dominating elements in the romanticism. What is romanticism? How can we can define romanticism? Literature depicting emotional matter in an imaginative form. Liberalism in literature. Imagination, emotion, and freedom are certainly the focal points of romanticism as far as these two definitions are concerned. So, imagination, emotion, and freedom are certainly the focal points of romanticism. And it stresses on self-expression and the individual uniqueness. For example, uh, uh, attitude of different poets to nature have been quite different. All people have been loving nature, but they all loving in their own individual, unique perspective. They have been using creative imagination, feelings, and intuition under limelight. I have been discussing nature in focus, importance of myth and symbolism, freedom and spontaneity, beauty of simple language, personal experience, and impact of past experiences. So these have been, I mean, some major and important aspects as far as the romanticism is concerned. Different poets have been uh, dealing with the different points. Somebody was, I mean, more inclined to discuss his personal experience. For example, Wordsworth is very much there. Then beauty of simple language, then love for nature, freedom and some spontaneity, and there's this creative imagination. So all romantic poets have been uh, discussing these major aspects. And one thing is very evident in the romantic literature as well as in the more specifically in the romantic poetry is that of the representation of the rural life, rural characters, rural settings. And it was actually a call back to nature because the 18th century was the age of industrial revolution. So people were, I mean, living the village life, and they were more desirous for urbanized life, for better employment, for better income sources, for better facilities in the cities. So romanticism is basically a call back to nature, right? Definitely, romanticism had some religious undertones as well. It has some religious interest in the background, but that is one aspect. Romanticism comprise many more aspects. So, imagination, individuality, nature, common man as the hero, and learning from the past. These has been the characteristics of the romantic period. I mean, almost all the writers, all the poets
in the Romantic era have been utilizing these characteristics. I mean, imaginative, creative imagination, their individual uniqueness, individual experiences, their love for nature as to how they represent nature, their attitude towards nature, and nature's response to humanity. They haven't been concerned with the kings and queens and princes and the generals. Rather, they have been discussing the common people. Rural characters. They have been the heroes and heroines in their literature, and definitely they were. There has been a strong streak of love for past. Wordsworth, we have already seen the smaller poems of Wordsworth, and he time and again discusses the childhood and the values which are and the qualities which are related to childhood. For example, purity, spirituality, love, friendship, uh, all these things. The collection of poems published as lyrical ballads in 1798 by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge has been traditionally seen as the birthplace of English Romanticism. Some of the important poets of the Romantic era are William Blake, George Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats, and the other English Romantic poets are William Blake, George Byron, Shelley, and John Keats. So these have been two generations of Romantic poets. Our colloquial use of romance and romantic to describe intense emotional experiences can be traced back to this medieval sense of the word, and so can the 18th and 19th century concept of romanticism as an intellectual experiences. ठीक है, इसमें वो वाली चीज नहीं है जिसमें हम लोग रोमांस और रोमांटिक थोड़ा सा जो है वो लव थीम, डेफिनेटली इट हैज इट्स कॉनोटेशन, बट ये है कि जो जब हम लोग इस पोइट्री की बात करते हैं तो इससे मतलब जो हरगिज जो है वो कोई लव पोइट्री नहीं है, रादर इट्स एन इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस, इट इज मूवमेंट. So romantic people have been, concerned with the medieval sense of the word. वहाँ पे भी that is something away from reality, right? They use intuition, they use imagination, they use fiction. तो ये सारी चीजें जो है उनको रियलिटी से थोड़ा हट के चीजों को जो है वो प्रेजेंट करने का जो है वो एक नाम है रोमांटिसिज्म. Romantic, the notion of romanticism has been used since romanticism, since the Renaissance, to suggest free expression of the imagination in the arts, but mainly in a negative sense. It was not, taken as something positive, because it
Sorry for disturbance. So I was talking about the use of the word romantic, and it was, I mean, in practice since Renaissance, to suggest free expression of the imagination in arts, but there was not something positive that was attached to this freedom of expression or free expression. Romantic imaginings were thought to interfere with the clarity of the art form, and so lay beyond the bounds of proper subject matter. So, positive something or some positive quality was not attached to romanticism. Rather, it was supposed to be rebelliousness, deviance from the traditional something. So यही समझ रहे थे कि शायद एक बागियाना रवैये की जो है वो आकाश है रोमांटिसिज्म जो है. सो इसको जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशंस के अंदर जो है इसको लिया गया. Romanticism came to stand for authenticity, integrity, and spontaneity. But it was a later attitude in the 19th century when Romanticism was in practice. But Renaissance के एज में जो है वो इसको पॉजिटिव नहीं समझा गया, रादर इसको जो है वो मुतसादम ख्याल किया गया आर्ट फॉर्म के साथ. It was seen as a positive artistic and intellectual assertion of the extremes in the human psyche, the areas of experience beyond logic and reason, which could only be expressed in a direct and heartfelt way. So, when it was in practice in the 19th century, तो इसको जो है वो एक positive artistic और intellectual जो है वो assertion समझा गया. ह्यूमन जो क्रिएटिविटी है उसकी एक इमेजिनेटिव जो इंट्यूशन है उसको एक पॉजिटिव टर्म्स के अंदर जो है वो इंटरप्रेट किया गया. और जो एरियाज ऑफ एक्सपीरियंस है बियॉन्ड लॉजिक एंड रीजन, उनको जो है वो आप डायरेक्ट या हार्ट फेल्ट वे में इंट्यूटिव अंदाज में जो है आई मीन डीपर इनसाइट्स जो हैं उस पर्सपेक्टिव में जो है इसको जो है वो लिया गया. The true romantic was not an oversensitive dreamer, but a heroic figure facing head on the painful realities of his time, a figure of genius. So, जो romantics थे, they were more intuitive than logical, और जो rational है वो उस faculty को, reason को जो है एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस जो है वो हासिल थी रोमांटिसिज्म के अंदर. इमोशनल या जो फीलिंग्स हैं या इमेजिनेशन है, इंट्यूशन है, they were considered to be the prime importance in romanticism. So चीज़ों को जो है उनका एक जो है वो एक अपना लॉजिक जो है वो इमेजिनेटिव लॉजिक जो है उसको मुतारफ करवाया रोमांटिसिज्म ने. So, अगर हम लोग वर्ड्सवर्थ की पोइम्स को या कीट्स या शैले की पोइम्स को देखें तो they do not lack in ideas, in knowledge and experience. They have all these vital elements as far as the human experience is concerned. लेकिन उसके अंदर जो इशू है, जो डिफरेंस है वो ये है कि उसको जो है वो लॉजिक जो रैशनल जो है उस पर्सपेक्टिव में जो है वो देखा नहीं जा सकता. आप उसको इंट्यूटिवली इमेजिनेटिवली जो है वो चीज़ों को क्रिएटिव पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो शायद वो चीज़ें आपको ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा जो है वो रिलायबल जो है वो लगे. जो रोमांटिक
जो कैरेक्टर्स हैं, पोइट्स हैं, वो ओवर सेंसिटिव ड्रीमर नहीं है, ठीक है, बल्कि वो हीरोइक फिगर्स हैं जो अपने मुआशरे, अपने टाइम, अपने जो हमअसर सोसाइटी है उसके अंदर जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, जो बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ हैं, तो वो उनको बड़ा करेजियसली, बड़ा जो है वो एक पेशेंस के साथ जो है वो बर्दाश्त करते हुए वो नजर आते हैं, ठीक है। वो और दे हैव बीन प्रेजेंटेड एज हीरोइक जीनियस, ठीक है। तो उसमें जो है वो जो एक रेनेसांस में जो एक नेगेटिव क्वालिटी जो है अटैच थी रोमांटिसिज्म के साथ, तो 19th सेंचुरी में जो रोमांटिसिज्म जब प्रैक्टिस में है तो उससे वो डिफरेंट चीज़ जो है वो बन के उभरा है और उसको समझा गया है और पॉजिटिव जो है वो आर्ट फॉर्म के तौर पर जो है वो लिया गया है। So our colloquial use of romance and romantic to describe intense emotional experiences can be traced back to its medieval sense of the word, and so can the 18th and 19th century concepts of romanticism as an intellectual experience. तो 18th century में जो है वो क्लासिकल एज है, तो वहाँ पर जो है वो जो रीजन थी दैट वाज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, बट जो रोमांटिसिज्म है दे गेव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन। romantics जो है has been in fact used, the term romantic has been in use since the Renaissance to suggest free expression of the imagination in the arts, but mainly in a negative sense. Romantic imaginings were thought to interfere with the clarity of the art form and so lay beyond the bounds of proper subject matter, because they were more based on the intuition, imagination, and something supernatural and even metaphysical sort of realities. तो I mean उसको जो प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर जो है, जिस तरह से क्लासिकल एज के अंदर या क्लासिकल जो है वो लिटरेचर के अंदर चीज़ों को देखा गया है, तो उससे वो थोड़ा डिफरेंट जो है वो एक सब्जेक्ट मैटर जो है उसके साथ डील करता है रोमांटिसिज्म में। परहैप्स इट वाज द रीजन व्हाई रोमांटिसिज्म वाज not treated positively as far as the Renaissance concept of the term is in question is concerned. Romanticism sorry, these are some of the salient features of romantic poetry: love for nature, glorification of nature, simplicity, revolutionary zeal. ठीक है, I have already discussed this French Revolution, and the romantic poets have been commenting on the revolution, even though they have not been the participants. Rather, their role was that of more of a spectator, because they were I mean outside and viewing what was happening in France. Humanism is very much there, supernaturalism, love for beauty, and there comes the idea of Hellenism. I mean, love for beauty and the Greek sense of beauty has been incorporated by Keats. Hellenism is very much there, and similar undertones are found in different other romantic poets. Then use of common language, and we are concerned with the poetic diction also. We have a theory, Wordsworth's theory of poetic diction. We'll discuss later. Sensuousness is very much there. They use such vocabulary that satisfies our senses. It is not, I mean, उसको जो है वो किसी जो है वो सेक्सुअल कॉनोटेशंस के अंदर नहीं है। मकसद ये है कि जो हमारी जो सेंसेस हैं वो ग्रेटिफाई होती हैं। आप लोग ऑलरेडी
पढ़ चुके हैं जॉन कीट्स को, तो उसके अंदर वो सेंशुअसनेस का जो आइडिया वो कन्वे करता है कि डिफरेंट किस्म के टेस्ट, डिफरेंट किस्म की जो ऑर्डर्स हैं, डिफरेंट किस्म के जो पिक्चर्स हैं, ही इज रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। ओ टू ऑटम में आप लोगों ने इन चीज़ों को वहाँ पे देखा है। आवाज़ें हैं, जायके हैं, तस्वीरें हैं, खुशबुएं हैं, जायके हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग, एक्टिविटीज़ हैं, ये देखते हैं वहाँ पे। इसके अलावा रोमांटिक पोइट्री के अंदर जो थीम है, दे आर कॉमन थीम्स, कोई अर्बन नहीं है, रूरल सेटिंग, रूरल बैकग्राउंड और रूरल जो है वो लाइफ से मुतल्लिक जो है वो थीम्स हैं, हैव बीन डिस्कस्ड। स्पॉन्टेनिटी है, पैंथीज्म, सब्जेक्टिविटी है। हम लोग वर्ड्सवर्थ के हवाले से जो है वो पैंथिस्टिक जो बिलीफ्स हैं उसको देखते हैं, और ज़्यादातर जो रोमांटिसिज्म है उसमें वो एक सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन, जब हम लोग इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं तो वी आर डेफिनेटली कंसर्न्ड विद द सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स। ओके, लिरिसिज्म है वहाँ पे, मोस्ट ऑफ द रोमांटिक पोएट्री इज इन द फॉर्म ऑफ लिरिक, इट्स अ strong expression of the strong feelings and emotions. Classicism, individualism, classicism in the sense they show their love for the classic writers, ठीक है। उसमें शेक्सपियर है, उसमें मिल्टन है, उसमें जो है वो सोफोक्लिस है, ठीक है, स्केलस है, I mean, जो ग्रीक और रोमन राइटर्स थे, they present them in a very positive sense. Individualism जो है is one of the major trait of romantic literature. हर जो पोएट है, राइटर है, वो अपना पर्सनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है उसको जो है वो उसका इजहार करता है, मुख्तलिफ जो इसके एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो नेचर के साथ हैं, चाहे वो इंसानों के साथ हैं, सोसाइटी के साथ हैं, ठीक है, या सुपरनेचुरल जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ हैं। मिस्टिसिज्म इज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट इन रोमांटिक लिटरेचर। चीज़ों को जो है वो डिलिबरेटली मिस्टिफाई जो है वो किया गया है रोमांटिक पोइट्री के अंदर। आई मीन थोड़ा सा रिलीजियस का टच दे के चीज़ों को इंट्यूटिव जो है वो अंदाज में दिखाया गया है। थिंग्स हैव बीन आई मीन represented as if they have been in the spiritual experience of the people, of the poets. High imagination है, और फिर हम लोग इसमें कॉलरिज का जो एक theory of imagination है, we'll discuss it later. फैंसी और इमेजिनेशन दो डिफरेंट जो है वो abilities हैं चीज़ों को जो है वो इमेजिन करने के लिए, ठीक है। लव फॉर नेचर इज़ वेरी मच देयर, जो उन लोगों का जो है हर पोएट की जो है वो एक्सपीरियंस विद नेचर जो है वो अगर जब वो डिफरेंट है। आई मीन वर्ड्सवर्थ तो उसको फिलोसफाइज करता है और इस हद तक उसके लिए जो है वो नेचर बिकम्स एवरीथिंग, ठीक है। वो ही टॉक्स अबाउट द गॉड ऑफ नेचर एंड नॉट द क्रिश्चियन गॉड समटाइम्स। तो मतलब ये सारे जो है वो मेजर और इम्पोर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, फीचर्स हैं रोमांटिक लिटरेचर के, रोमांटिक पोएट्री के खास तौर पर। विलियम वर्ड्सवर्थ is one of the most important exponent of romanticism, and it starts with William Wordsworth and Coleridge's work, collaborative work. William Wordsworth remains a standing example, miracle of romantic poetry. He is the prominent of the romantic poets. He is more a poet than a critic. उसकी जो पोइट्री है इट्स द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोमांटिसिज्म। तो जो रोमांटिक फीचर्स हैं उसकी पोइट्री के अंदर हम लोग उनको देखते हैं। फिर वो उसकी अपनी एक पोइटिक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पोइट्री है। वी हैव बीन डिस्कसिंग इट सिंस प्लेटो ऑनवर्ड, अरिस्टोटल है, फिर हम लोगों ने भी सिडनी को देखा, तो अब विलियम वर्ड्सवर्थ उसकी भी जो है वो पोइट्री के हवाले से, पोइट्री की डिक्शन के हवाले से खास तौर पर जो है वो अपनी एक थ्योरी है जिसको वो डिस्कस करता है।
He was the pioneer of romantic movement. मैंने जैसे कहा कि ये जो रोमांटिसिज्म है स्टार्ट्स विद विलियम वर्ड्सवर्थ, उसकी पोइट्री, फिर उसका जो कॉलरिज के साथ मिलकर जो एक कोलैबोरेटिव वर्क है, ठीक है, लिरिकल बैलेड्स वाला, तो दैट इज आई मीन द स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट। वो उसके सब्जेक्ट मैटर से है, उसकी फॉर्म से है, एक्सप्रेशन से है, स्टाइल से है, आई मीन एवरीथिंग। it had its own way, its own guidelines or SOPs to compose poetry. William Wordsworth was born on April 7, 1770 in Cockermouth, England. Unlike other major English poets, he enjoyed a happy childhood under the loving care of his mother. And he's been, living in the lap of nature. लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वहाँ पे रहा, झीलों का और खूबसूरत जो है वो मरगज़ारों का जो है वो एक इलाका है, और शायद उसकी यही बचपने की जो एक मोहब्बत है, अटैचमेंट है नेचर के साथ, तो it all made him a great lover of nature. He was very close to his sister Dorothy. He was fascinated by the epic poet John Milton, but rather he takes John Milton as a model for himself. Wordsworth defines poetry and he rather presents a complete theory about poetry and the poetic diction. He says poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. And he also defines poetry by saying poetry is the breath and finer spirit of all knowledge. It is an impassioned expression which is in the continence of all sciences. So, to Wordsworth, a poet is a man who possesses more than usual organic sensibility. अगर आप लोगों ने उसकी जो पोएम है डेफोडिल्स, अगर उसको देखा है तो उसका जो लास्ट जो पार्ट है वहाँ पर वर्ड्सवर्थ जो है वो कहता है कि जी व्हेन आई लाई ऑन माय काउच दे फ्लैश अपॉन माय इनवर्ड आई and in a mood pensive my heart starts dancing with them. तो वो जो स्टेंजा है, वो जो लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द पोएम है, वो बेसिकली वर्ड्सवर्थ ही की इसी थ्योरी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोइट्री जो है ये एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, वट एवर द पोइट और द पर्सन इन क्वेश्चन फील्स, और जिस किस्म के इमोशंस उसके साथ अटैच है उसके एक्सपीरियंस के साथ, तो वो आपकी जो पोइट्री है वो इमोशंस में ही जो है वो ओरिजिनेट होती है, फिर उसको रिकलेक्ट करता है इन ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, उसको जो है वो रीजन के कसौटी पर भी परखता है वो, फिर देन जो है ही कंपोजेस पोइट्री. सो दिस वे ही अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, poetry is just the expression of your powerful spontaneous feelings and emotions. वो चाहे डेफोडिल्स को देख के हों, चाहे किसी जो है वो रीपर को देख के हों, चाहे किसी बच्चे को देख के हों, चाहे किसी जो है वो नेचुरल फिनोमिनन को देख के हों, व्हाट्सएवर इट मे बी, राइट, जो उसके नतीजे में जो है वो आपका एक्सप्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड पोइट्री. और वो समझता है कि ये एक बड़ा ही जो है वो एक रिफाइंड किस्म का जो है वो जज्बा है, एक जिंदगी है, तमाम नॉलेज के अंदर मौजूद होती है, एंड इट इज द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, कि जज्बाती इजहार है, विच इज इन द कॉन्टिनेंस ऑफ ऑल साइंस, और तमाम ही जितनी भी साइंसेस हैं, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, दे ऑल कंटेन दिस एक्सप्रेशन, इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन. सो वर्ड्सवर्थ के नज़दीक जो पोएट है उसका एक अपना एक रोल है, उसका एक अपना मकाम है, उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट है वो उसको लेता है कि उसके अंदर जो आम इंसानों से जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी को पोजेस करता है, ठीक है, उसके अंदर वो चीज़ों को देखने, उसको समझने
और उसको महसूस करने की जो है वो एक यूनिक जो है वो क्वालिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, जो आम इंसानों में नहीं होती। और डेफिनेटली उसका एक अपना अपना रोल है जो वो मुख्तलिफ तरह से जो है उसको निभाता है। वो पोइट को समझता है कि वो एक बेनिफैक्टर है, दूसरे लोगों को टीच करता है, ठीक है। वही जो हम लोग सिडनी में उसके उसके जो है वो कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं चीज़ों को, तो वो हमें यहाँ पर भी नज़र आती हैं। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, लेट्स डिस्कस इट्स inequality and limitations. He is deficient in the purely lyrical gift, treatment of nature and its egotism. As a poet of nature, Wordsworth stands supreme. Okay? जिस किस्म की जो है वो उसका ट्रीटमेंट है नेचर का अपनी पोइट्री के अंदर, आई मीन ही मिस्टिफाइज नेचर, बल्कि वो नेचर को जो है वो एक गॉड के तौर पर लेता है। वो मेंटर है, वो मदर है, वो बेनिफैक्टर है, facilitator है, ठीक है। he has very constructive role to play in man's life. He's is a worshipper of nature. इस तरह से जो है वो उसको कहा जाता है। nature's devote or high priest. His love for nature was probably truer and tenderer than that of any other English poet. Wordsworth has philosophical and original view of nature. And 3 points in his creed of nature are noted. Nature is a living personality. वो उसको एक पर्सोनिफाई कर देता है, ठीक है। He takes it as a living personality. Nature has healing power, ठीक है। आप नेचर की आगोश में होते हैं तो मतलब वो आपको जो है वो दुनिया के जो दुख हैं, जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, तो आपको वो इनसे रिलीफ प्रोवाइड करती है। इट हैज अ हीलिंग पावर। नेचर इज अ ग्रेट मॉरल टीचर, ठीक है। इट टीचेस यू द मॉरल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सोसाइटी। आपको इतना जो है वो लतीफ और रकीक बना देती है, आप अंदर से इतने रिफाइंड हो जाते हैं, ठीक है, कि आपको किसी और जगह से जो है इसको चीज़ों को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। इट सर्व्स एज अ कोड ऑफ लाइफ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इतना जो है वो उसको जो है वो ग्लोरीफाई करता है नेचर को अपनी पोइट्री के अंदर। सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है एक दूसरा जो है वो पोइट है जो इसके बाद है, एक दूसरा बड़ा नाम है रोमांटिक पोइट्री के अंदर। और ही वाज अ ग्रेटर क्रिटिक देन वर्ड्सवर्थ। हालांकि उसका पोएटिक वर्ड भी है और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सुपरनेचुरल एलिमेंट और मिस्टिफिसिज्म जो है वो हमें जो है वो सैमुअल टेलर कॉलरिज की जो है वो पोइट्री के अंदर ज़्यादा नज़र आता है, बट वो पोइट से ज़्यादा एक बड़ा क्रिटिक है। he was an English poet, a literary critic and philosopher. During the 18th century, the catchphrase of literature and art was reason. ठीक है, reason had prime importance in the 18th century. But the 19th century was heralded by major shift in the conception and emphasis of literary art and specifically poetry. ठीक है, तो उसमें खास तौर पे जो इमोशंस, इमेजिनेशंस वगैरह जो है उसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस हासिल हो गई और रीजन जो है वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस पे चला गया। कॉलरिज की जो पोइट्री है इट हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स and the most important characteristic of his literary text, he used supernatural elements. मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, and he was visionary element in his incorporates visionary elements in his poems. अगर आप उसकी जो पोइम है कुबलाई खान है, क्रिस्टाबेला है, ठीक है, द राइम स्कीम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, और भी पोइम्स हैं उसकी, तो उसके अंदर जो है वो सुपरनेचुरल एलिमेंट जो है उसकी ज़्यादा बात करता है, बल्कि उसका एक जो है वो एक स्टेटमेंट है
द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि अब थोड़ी देर के लिए जो डिसबिलीफ की जो कंडीशन है, चीज़ों को जिस तरह से पोइट प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, आप थोड़ी देर के लिए उसको सस्पेंड कर दें तो शायद आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे। वो जो डिसबिलीफ की जो एक कंडीशन है उसको जो है वो प्रैक्टिस करें कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, जो है इसको सस्पेंड कर दें थोड़ी देर के लिए एंड बिलीव दैट व्हाट पोएट सेज इज ट्रू। तो you can have a different sort of a very grave and very profound sort of experience of the things the poet presents. So supernatural elements, extraordinary and mysterious that can be found in human nature. तो वो उन चीज़ों को जो है वो अपनी पोइट्री के अंदर डिस्कस करता है। इस किस्म के जो है वो इस्तारे और तशबीहात जो है वो उसकी पोइट्री में डोमिनेट करते हैं। Nature is not the only subject matter. He also talk about psychology of character. जिन कैरेक्टर्स को बात करता है तो उनके जो मख्फी जो हिडन फोर्सेस हैं, हिडन फैक्टर्स हैं, ह्यूमन जो माइंड है उसकी जो एक जो पावर्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, तो वो उसको भी जो है वो डिस्कस करता है अपनी पोइट्री के अंदर। His टेक ऑन लैंग्वेज, फिर वो वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन है उसके ऊपर उसका बड़ा ही वैलिड किस्म का जो है वो क्रिटिसिज्म भी है, जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी के अंदर मुबहम है उनको क्लैरिफाई करता है, बल्कि उसकी जो है वो करेक्शन करता है, वो चैलेंज करता है वर्ड्सवर्थ के जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को जो वो अपनी पोएटिक थ्योरी के अंदर प्रेजेंट करता है। Biographia Literaria is the one of his significant theoretical works, जो उसका एक इंडिविजुअल वर्क है। Biographia Literaria is concerned with the form of poetry, the genius of the poet and the relationship to philosophy, poetry and philosophy. कुबला खान and the rhyme of the ancient mariner जो है वो उसकी मेजर पोएम्स हैं, क्रिस्टाबेला भी है और भी कुछ पोएम्स हैं। जब हम लोग उन दोनों का जो है वो कंपैरिजन करते हैं कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का, तो कॉलरिज ऑब्जेक्शन टू वर्ड्सवर्थ यूज ऑफ टर्म रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, और जो दूसरी कुछ टर्म्स हैं, जब हम लोग वर्ड्सवर्थ की थ्योरी जो है उसको पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड्सवर्थ जो है वो चंद पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात करता है। उसमें वो चाहता है कि जो पोइट्री की लैंग्वेज हो तो वो रियल लैंग्वेज ऑफ द रियल पीपल होना चाहिए। तो जो रियल का लफ्ज है दैट इज अ बिट एम्बिगुअस, व्हाट डज ही मीन बाय रियल, ठीक है। तो उसमें वो जो रियल का कॉन्सेप्ट है, तो फिर जो कॉलरिज है ही क्रिटिसाइजेस हिज यूज ऑफ द वर्ड रियल। सो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय कॉमन मैन एंड द कंसर्न ऑफ पोएट्री शुड बी सिंपल, रस्टिक एंड कॉमन लाइफ। लेकिन कॉलरिज जो है वो इतनी जो जनरलाइज्ड जो है एक स्टेटमेंट्स हैं वो उसको अपोज करता है, और वो कहता है कि मैन आर इंडिविजुअल्स बाय नेचर, ठीक है। हर बंदा जो है वो यूनिक है अपने अपने जो है वो ज़ात में, अपनी शख्सियत में। सो ही थॉट दैट लोअरिंग डिक्शन एंड कंटेंट सिंपली मेड इट, ठीक है। तो अब डिक्शन को जो है वो इस तरह से जनरलाइज कर दें और एक जैसे जो उसका कंटेंट है उसको भी जो है वो इस तरह से कर दें, तो पोएट जो है उसके पास जो यूज करने के लिए जो है वो बहुत ही लिमिटेड सी वोकैबुलरी होगी और कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको जो है वो अपनी उस जो है वो रूरल बैकग्राउंड से, या वो लोग जो फितरत के करीब रहते हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं या रूरल लाइफ में हैं, तो वहाँ से जो आइडियाज आएंगे वो भी लिमिटेड होंगे, और जो वोकैबुलरी या जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होगी, और उससे जो हायर किस्म की, जो फिलोसॉफी किस्म के और जो है वो डीपर इम्पोर्टेंस के जो हायर कॉन्सेप्ट्स हैं, नोशंस हैं, उनको उस लैंग्वेज के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और वैसे भी जो ह्यूमन लैंग्वेज है, जैसे जैसे इंसान का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उसका एक्सपोजर होता चला जाता है, उसका नॉलेज बढ़ता है, तो उसकी लैंग्वेज और ज़्यादा जो है वो ग्रो करती है। तो उसको लिमिट कर देना जो है वो किसी तरह से मुनासिब नहीं है।
So Coleridge also combines his theoretical ideas in his poetry. He abandons Wordsworth's notion of poetry from the common man and uses lofty language, poetic diction, and subject matter, while he still holds a reverence for nature inherent to romantic literature. His poems are not exclusively based around the natural. ठीक है, वो सिर्फ नेचर के हवाले से बात नहीं कर रहा, बल्कि वो जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन कैरेक्टर है, उसकी साइकोलॉजी है, तो उसके ऊपर भी जो है वो कमेंट करता है. तो जो मेजर उसका कंट्रीब्यूशन है वो उसका जो अरिस्टोटल के वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक थ्योरी है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, प्लस उसकी जो पोएट्री है वो उसकी अपना जो कॉन्सेप्शन ऑफ पोएट्री है या जो क्रिटिसिज्म है वो उसके ऊपर जो उसके जो उसका वर्क है, तो दैट इज हिज रियल कंट्रीब्यूशन टू पोएट्री एंड द रोमांटिक लिटरेचर. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे इसके हवाले से, रोमांटिक पोइट्री के हवाले से भी, और वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक थ्योरी है और उस पर फिर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कॉलेरिज किस तरह उसको क्रिटिसाइज करता है, कमेंट करता है, वो हम लोग उसके ऊपर फिर डिटेल से चीज़ों को जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह. यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट है तो काइंडली आप उसे शेयर कर लें, ताकि मैं उसके ऊपर कुछ अगर ब्रीफली ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की तो मैं कर दूं. जी, है किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, इसमें नहीं है सर. पिछले वाले में मैंने पूछना था, अजान हो रही थी इसलिए नहीं पूछा. पिछले वाला जो है ना सिडनी वाला, उसमें आपने जो नोट सेंड किए थे उनमें ना एक है द अपॉलॉजी एज एन एपिटोम ऑफ रेनेसां क्रिटिसिज्म. सर ये क्या है, ये करना है या नहीं? जी बताइए क्या है उसके अंदर है. द अपॉलॉजी एज एन एपिटोम ऑफ रेनेसां क्रिटिसिज्म, ये वाली मतलब रेनेसांस क्रिटिसिज्म. हाँ जी. जिस तरह हम लोग अभी रोमांटिक क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, तो वो जो है वो रेनेसांस जो है, सिडनी जो है वो ही बिलोंग्स टू द रेनेसांस एरा. तो वो जो उस वक्त के जो प्रेवलेंट जो आइडियाज थे, जो आर्ट के मुतल्लिक जो कॉन्सेप्ट्स थे, तो सिडनी की जो अपॉलॉजी फॉर पोएट्री है उनको डील करती है. ठीक है, जैसे भी हम लोग वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे तो वो रोमांटिक, या कॉलेरिज को पढ़ेंगे तो वो रोमांटिक जो एक कॉन्सेप्शन ऑफ आर्ट है उसके ऊपर वो कमेंट करते हैं. जी सर. सर मैं ये पूछना चाहती थी कि वो उसमें दिया हुआ था, तो मतलब ये हमने करना है फिर सिडनी के लिहाज से. आप उसमें से गो थ्रू तो होंगे ना, उसमें से गो थ्रू होंगे चीजें. जी ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है, वेलकम.